Hello, students. Welcome. The topic today we have rights in a democracy. Earlier, we discussed about rights, but it was life without rights. Now, we have rights in a democracy. डेमोक्रेसी में राइट्स कैसे होते हैं? Think of all the examples that we have discussed so far. Think of the victims in each example, the prisoners and in the Guantanamo Bay, women in Saudi Arabia, Albanians and Kosovo. If you were in their position, what would you have wished? If you could, what would you do to ensure that such things do not happen to anyone? You would perhaps desire a system where security, dignity, and fair play are assured to everyone. You might want, for example, that no one should be arrested without power, reason, and information. And if someone is arrested, he or she should have a fair chance to defend themselves. You might agree that such assurance cannot apply to everything. One has to be reasonable in what one expects and demands of everyone else, for one has to grant the same to everyone, but you might insist that the assurance does not remain on paper, that there is someone who enforces these assurances, that those who violate these are punished. In other words, you might want a system where at least a minimum is guaranteed to everyone, powerful or weak, rich or poor, majority or minority. This is separate behind thinking about rights. तो आपको बताया जा रहा है कि आपने जो इससे पहले पढ़ा, पहली जो क्लास हमने की, आपने एग्जांपल्स देखी प्रिजन ऑफ गुआंतानामो बे की, सऊदी अरबिया की, अल्बानिया एंड कोसोवो की, कि वहाँ की एक एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कि वहाँ पे लोगों के साथ क्या हुआ, लोगों के साथ क्या कैसा जुल्म होता है, राइट्स उनके कैसे वायलेट होते हैं। अगर आप उस सिचुएशन में हों तो आप क्या करेंगे? अगर आपके राइट्स वायलेट हों, आप उस सिचुएशन में, तो आप क्या करेंगे? आप डिज़ायर करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आपको कोई सिस्टम मिले जो आपको एश्योर करे कि आपके राइट्स की गारंटी दी जाएगी, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा किसी रीज़न या इन्फॉर्मेशन के बगैर, आपको डिफेंड करने का चांस दिया जाएगा। लेकिन ये एश्योरेंसेस जो आपको दिए जाएंगे, ये एश्योरेंसेस रीज़नेबल तभी होंगे जब आपको ये एश्योरेंस पेपर पे ही ना मिलें, बल्कि इनको इन्फोर्स करने के लिए कोई वहाँ पे हो जो इनको इन्फोर्स करे, और ये इंश्योरेंसेस जो हैं उनसे आपके राइट्स वायलेट करने वाले को पनिशमेंट्स मिलें, एक सिस्टम मिले, और सिस्टम ऐसा मिले कि आपके साथ जुल्म हुआ है तो आपको ही नहीं, आपके जैसे बाकी जो लोग हैं उनको भी बराबर के हकूक़ मिले। यही है स्पिरिट ऑफ राइट्स, कि आप राइट्स मांगते हैं तो अपने लिए नहीं, सबके लिए मांगते हैं। व्हाट आर राइट्स? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ ए पर्सन, आवर अदर फेलो बीइंग्स, our the society and our the government, all of us
want to live happily without fear and without being subjected to degraded treatment. For this, we expect others to behave in such a way that does not harm us or hurt us equally. Our actions should not also harm or hurt others. So, a right is possible when you make a claim that is equally possible for others. You cannot have a right that harms or hurts others. You cannot have a right to play a game in such a way that it breaks the neighbor's window. The Serbs and Yugoslavia could not have claimed the whole country for themselves. The claims we make should be reasonable. They should be such that can be made available to others in an equal measure. Thus, a right comes with an obligation to respect other rights. राइट क्या होता है? राइट एक आपका एक क्लेम है. राइट आपका एक राइट एक आपका क्लेम है जो आप अदर फेलो बीइंग्स पे, सोसाइटी पे, गवर्नमेंट से मांग रहे हैं कि आपका ये क्लेम है, आप ये चाहते हैं. हम सब चाहते हैं अच्छा खुश रहना, डर के बगैर रहना, डिग्रेडेड ट्रीटमेंट, बुरा सलूक हमारे साथ ना हो. इसके लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी जो लोग हैं वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करें, हमें ज़ख्म ना पहुँचाएँ, हमें दुख ना पहुँचाएँ, हमें नुकसान ना पहुँचाएँ. इट्स योर क्लेम, इट्स योर राइट. या आपके एक्शंस दूसरों को नुकसान ना पहुँचाएँ, लोगों के एक्शंस आपको ना पहुँचाएँ. अगर आप ऐसा राइट क्लेम करते हैं जिससे दूसरे को नुकसान हो तो वो राइट नहीं है. आप ऐसा राइट क्लेम करते हैं कि आप ऐसा करना चाहते हैं, आप ऐसे रहना चाहते हैं, लाइक आपके जिस तरीके से आप रहना चाहते हैं उससे दूसरे का नुकसान हो, वो आपका राइट नहीं है. आपका क्लेम दूसरे को हर्ट ना करे, दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए और अपने लिए आप बेस्ट सोचें, वो आपका राइट है. सर्ब्स जैसे यूगोस्लाविया में पूरा मुल्क अपने लिए मांग रहे थे तो वो उनका राइट नहीं हो सकता था. सर्ब्स के बगैर बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका भी हक था वहाँ पे. आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं अपने बागीचे में, लेकिन उससे आपके पड़ोसी की खिड़की टूट जाती है. दैट्स नॉट योर राइट. नॉट राइट टू प्ले इन योर गार्डन. अपने गार्डन में खेलना चाहते हैं, खेलिए, लेकिन आपके गार्डन से खेलने की वजह से आपके पड़ोसी की खिड़की टूटती है, then you have no right to play in your garden. राइट्स वो होते हैं जो आपकी सोसाइटी रिकॉग्नाइज करें, आपके लोग, आपके गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करें और आप उनको रिकॉग्नाइज करें. When the socially recognized claims are written into law, they acquire a real force. Otherwise, they remain merely as natural or moral rights. The prisoners in Guantanamo Bay had a moral claim not to be tortured or humiliated, but they could not go to anyone to enforce this claim. When law recognizes some claims, they become enforceable. We can then demand their application. When fellow citizens of the government do not respect these rights, we call it violation or infringement of our rights. In such circumstances, citizens can approach courts to protect their rights. So, if we want to call any claim right, it has to have these three qualities. Rights
or reasonable claims of persons recognized by society and sanctioned by law. राइट्स सोसाइटी रिकॉग्नाइज करते तो वो राइट्स हैं, लेकिन तब तक वो क्या हैं, मॉरल राइट्स हैं, मॉरल क्लेम्स हैं, मॉरल राइट्स हैं। एक एग्जांपल दे दूँ आपको, अगर आप नाले पे खड़े हैं, दरिया के किनारे खड़े हैं, आपको तैरना आता है, एक बच्चा आता है, उस दरिया में छलांग लगाता है और डूब जाता है, आपको तैरना आता है लेकिन अपने बच्चे को नहीं बचाया, यू कैन नॉट बी पनिश्ड बाई लॉ। इट्स अबाउट ड्यूटी, नॉट राइट्स, बिकॉज इट वॉज योर मॉरल ड्यूटी एंड लॉ कैन नॉट इन्फोर्स योर मॉरल ड्यूटीज। अगर आप बचा लेते तो आपका अखलाकी फ़र्ज था। इसी तरह से राइट्स जो हैं सोसाइटी के रिकॉग्नाइज करने से वो मॉरल राइट्स ही रहते हैं। वो कब और राइट्स बन जाते हैं, वो कब राइट्स बन जाते हैं, इन्फोर्सेबल राइट्स, जब आपके राइट्स को रिकॉग्नाइज सोसाइटी ने किया हो और उसके बाद लॉ भी उसको रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, आपकी लॉ भी उसको रिकॉग्नाइज करे। अगर आप का कोई हक है, लॉ ने भी इन्फोर्स किया हुआ है और आपको वो हक नहीं दिया जा रहा, तो उसे हम कहते हैं वायलेशन ऑफ राइट्स और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स। अगर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हो, वायलेशन ऑफ राइट, तो आप कोर्ट्स में जा सकते हैं क्लेम लेके कि मेरे ये राइट वायलेट हुए हैं। तो हम ये शॉर्ट में ये देखेंगे कि राइट्स जो हैं वो रीजनेबल क्लेम होते हैं जिनको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है, जिनको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है और जिनको लॉ भी सैंक्शन करता है। ठीक है, सो दिस मच इज़ सफाइस फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।